आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 से एंड ऑन ऑल द वे टू क्वेश्चन नंबर 28 आई गेस 27 तक शो कर रहा है, आई डोंट नो। अच्छा जी, वेट अ सेकेंड, वेट ओके, वेट अ सेकेंड। यप, अच्छा जी, एक सेकेंड। The question number 16, it says that to demonstrate the simple harmonic motion, the student attaches a trolley to the two similar stretched springs as shown in the figure 3.1, right? This is the trolley and these are the springs. The trolley has a mass of this much gram. This is the equation. The trolley is displaced along the line of the two springs and then released. The subsequent acceleration of a trolley is given by expression. So this is the actual equation, right? Okay, where the spring constant is given, where the spring constant for each of the spring is this, and x is the displacement of the trolley. Show that the frequency of the oscillation is 2 hertz, right? If you were to find the, okay, okay, this is a 3 mark question, and I would go to find angular frequency. Okay, if I am going to find the omega, it means uh, minus 2k upon a, right? I'm equating this. Okay, then comes the my, okay, I will just ignore the signs. 2 into k is 64. Then comes the mass is 8, 10 into 10 की power minus 3, right? Okay, let me calculate what's the answer. 2 into 64, 8, 10 into 10 की power minus 3. So wait a second, this is question number 16. Okay, I am getting 12.57, right? Okay, then comes 2 pi f. 12.57 upon 2 pi is equals to frequency. Wait a second, I think I might have made an error. No, this is the answer, 2 hertz, right? Okay, the next part says the maximum displacement of the trolley is 1.6 centimeter. Calculate the maximum speed of the trolley. If I were to find the maximum speed, then I would use v naught omega x naught. This is the maximum speed, and this is of course the amplitude. Omega is 12.57 and the maximum displacement of the trolley is 1.6 centimeter. So 1.6 into 10 की power minus 2, right? Let me calculate. 12.57 into 1.6 10 की power minus 2. I am getting 0.20. I am getting 0.20112. I would go with 0.22, two significant figures, right? Okay, here comes the next part. Okay, the question says the mass of the trolley is increased. Okay, the initial displacement of the trolleys remains unchanged. Fine. Suggest the change that occurs in the frequency and in the maximum speed of the oscillations of the trolley. Okay, if the mass is increased, what is the effect of frequency and maximum speed? Just assume that. Okay, I got it. Put down the, no, we will write this formula 2k upon m,
right? Then I would just go 2 into 64. Then I would write the some bigger value for mass of greater than 810, right? I would go base 1000, right? Divided by 1000. Let's see what's the answer. 2 into 64 और नीचे आएगा 1000 10 की पावर -3, right? So this is I'm getting omega 11.31, right? So it is the lesser value. Okay, the question says what is the effect on frequency. Then I would just put this formula. 11.31 is equals to 2 pi is equals to frequency. Now we will right now calculate 2 pi. So the answer is 1.80 hertz. The value I'm getting right now is lesser than the value I got in first part, 2 hertz. So it's mean the frequency decreases, right? Wait a second. Decreases, right? Okay. Now no question says what is the effect on maximum speed. Okay. Now we will write V naught W X naught. The omega we got here was 11.31 and the maximum displacement remains the same. Now let's see what is the answer we will get. I'm getting 0.18. So it means the value I'm getting right now is even smaller than the value I got in first part, right? In B part. So it decreases to. Pretty easy question. इस तरह की क्वेश्चन आते रहेगा बस, असल में भी लाइफ सेट हो जाएगी. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, right? Okay, the question is the mass hangs vertically from a fixed point by means of a spring as shown in figure 4.1. This is the mass, this is spring, this is okay. We will put equilibrium position. This seems hard a bit. Let me see. Where should I be putting it? Wait a second. Wait a second. I would say this is the line. Let's wait a second. Let me just wait a second. Let me count the boxes. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, right? 1 2 3 4 5 6. Wait a second. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. So I would just have to, this is the 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. I think एक जगह ऊपर आएगी, I guess. अब मैं काउंट करता हूँ. वेट अ सेकेंड. नहीं, ये बड़ा लग रहा है. आई थिंक इधर आनी चाहिए. बहुत कंफ्यूजिंग हुआ है. एक सेकेंड, दोबारा काउंट करते हैं. एक सेकेंड. 1 2 1 2. यस, नो दिस इज परफेक्ट. ओके, अब यहाँ पे हम चेक करते हैं कि okay, this is 2 centimeter, right?
एम्प्टी। अच्छा जी, क्वेश्चन है कि स्टेट द टू वैल्यूज ऑफ टी एट विच द मैस इज मूविंग डाउनवर्ड्स विथ मैक्सिमम स्पीड। आई थिंक एक तो वैल्यू आपकी होनी चाहिए एक सेकेंड, डाउनवर्ड्स। अभी अगर आपके पास ये वाली हाइट है, इसका मतलब है कि जितना मैस आपका नीचे है इतनी आपकी हाइट ज़्यादा हो रही है, एल की लेंथ ज़्यादा हो रही है, राइट। तो ये पूछ रहा है कि द टू वैल्यूज ऑफ टी एट विच द मैस इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, अभी ये मैस नीचे किया जाए और यहाँ से आपकी वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है मैस की, इसका मतलब है कि मैस ऊपर जा रहा है, राइट। ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब ये नीचे आना स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। एक सेकेंड, ये यहाँ तक आपका नीचे आ रहा है और अब यहाँ से ऊपर जाएगा, राइट। अब ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ। ये एक मिनट, अगर तो आपका ना यहाँ से आपकी लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब है कि आपका ये नीचे आ रहा है, राइट। और इसने पूछा है कि द मैस इज़ मूविंग डाउनवर्ड्स विद मैक्सिमम स्पीड। mass is moving downwards with maximum speed. वेट अ सेकेंड, हमारे पास बेसिकली एक सेकेंड दो पॉइंट्स हैं। एक हमारे पास ये पॉइंट, एक मिनट, एक अब हमारे पास ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। मैक्सिमम स्पीड्स के लिए यही पॉइंट्स हैं। इसमें से हमने दो पॉइंट्स ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो हमारे आंसर होंगे, राइट। आराम से दोबारा पढ़ते हैं, एक मिनट। This is the question. State two values of t at which the mass is moving downwards with maximum speed. अच्छा जी, चलें, मैं आइडिया हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपकी ये मैस की जो लेंथ है ना ये डिक्रीज़ कर रही है और उसने क्या कहा है कि आपका जो मैस है वो डाउनवर्ड्स मूव कर रहा हो, इसका मतलब है कि आपका लेंथ की जो वैल्यू होगी ना वो उस वक्त इंक्रीज़ कर रही होगी। यहाँ पे डिक्रीज़ कर रही है, ये चेक करते जाए, ये चेक करिए, लेंथ की वैल्यू आपकी डिक्रीज़ कर रही है, कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है, कर रही है, कर रही है, यहाँ तक कि आपकी वैल्यू डिक्रीज़ कर रही है। इसका मतलब है कि आपका ये जो है ना मैस है ये ऊपर जा रहा है, राइट। ये मैस ऊपर जा रहा है। अब देखिए, यहाँ से लेंथ की वैल्यू इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर, इसका मतलब है कि अब ये जो आपका मैस है ये नीचे आ रहा है, राइट। अब ये नीचे आ रहा है, राइट। अच्छा, अब ये आपके पास ना लेंथ नीचे आ रहा है, लेंथ इंक्रीज़ कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, राइट। फिर वही सिस्टम आ जाएगा और फिर लेंथ डिक्रीज़ करे, तो ये वाले दो पॉइंट्स हो गए, ये वाले, राइट। ये वाली वैल्यूज़ देनी है हमने राइट। ओके, अभी हमें समझ आ गई है ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब लेट्स सी ये कहाँ पे आती है। एक तो ये उठानी है हमने वैल्यू, और एक सेकेंड, सेंटर जहाँ से वो ख़त्म कर रहा है, एक सेकेंड। ओके, ये वैल्यू उठानी है हमने, राइट। लेट्स सी क्या आती है। सबसे पहले तो लेट्स सी 0.21, 0.22, 0.23 है, तो ये 0.22 और 0.23 के बीच आ रही है, यानी ये 0.225 आएगी एक वैल्यू आपकी, राइट। ये वैल्यू है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आएगी, 0.52 और 0.53 के बीच आ रही है, यानी 0.525 आ रही है, राइट। ये दो वैल्यूज़ आपके पिक करके नीचे लिखनी है, 0.225 और इधर से आ जाएगा 0.525। इतनी ख्वारी एक नंबर के लिए, पर चलो अच्छा आगे भी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बतानी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास 2π/t होती है आपके पास, या 2π/f होती है। तो अगर ये 2π है तो टाइम पीरियड क्या होगा इसका, यहाँ पे ये एक कोने से लेके ऊपर दूसरे कोने तक, तो 0.3, राइट। तो आंसर आ रहा है 21 रेडियंस। मैक्सिमम स्पीड के लिए वही हो जाएगा V0
एक्स एम्पलीट्यूड, यानी एक्स हो, ये मैंने क्या लिख दिया है, ये होगा डब्ल्यू और एक्स नॉट। ओमेगा आपका आ गया 21, डिस्प्लेसमेंट अभी मैंने निकाली है थी, 2 थी, 10⁻⁻2 थी आई गेस, राइट, 2 थी, राइट। ओ लेट मी सी क्या आंसर आ रहा है, 21 इंटू 2 0.42 आ रहा है, राइट, मीटर पर सेकेंड, राइट। इसके ऊपर थोड़ी ज़्यादा वर्किंग शो कीजिएगा ताकि एग्जामिनर को पता हो कि आपने सही वैल्यू निकाली है, राइट, राइट, ओके, दिस सीम्स फन। अच्छा जी, इस क्वेश्चन के लिए आई वुड से कि मुझे एक चीज़ शेयर करनी होगी पहले। आई थिंक ये इस तरह का ना जो क्वेश्चन होता है ये बड़े मज़े का होता है। एक सेकंड, मुझे इसके लिए ना एक वैल्यू शेयर करनी है, क्योंकि एक नोट्स की सर ने कराया था, उससे आसानी से समझ आ जाएगा, उसको कंपेयर करेंगे ना। चैनल मैं बंद कराऊंगा अपना आज, वेट अ सेकेंड। वेट, मुझे वापस आने दें। पोस्टिंग आ गया, मार्किंग स्कीम। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? ओके, एक सेकेंड, इसको अच्छा जी, इसको पहले प्रॉपर समझ लेते हैं। अगर आपके पास ये एक ग्राफ हो, जैसे यहाँ पे हमारे पास स्पीड वर्सेस इसका ग्राफ आया है, क्या कहते हैं, स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, इधर भी क्या है, स्पीड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपका जो क्या कहते हैं ये सेंटर पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका एम्पलीट्यूड है, ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है, राइट। अब आप इमेजिन करें आपकी जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो कहाँ पे हो रही है, ओके। आपका सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि एक मिनट, आपका एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड वेयर है कि एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड है हमारा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सबसे पहले अब हमने एक एम्पलीट्यूड की वैल्यू देनी है ना, राइट। तो एम्पलीट्यूड की जो वैल्यू देनी है, इसका मतलब है कि आपके पास एक वैल्यू होनी चाहिए, ओके, एक मिनट, एम्पलीट्यूड की वैल्यू होगी, अच्छा इतना तो हमें कंफर्म है ना कि आपके पास ये वाली जो वैल्यू है 0.42 मैक्सिमम स्पीड की है, ये वाली वैल्यू तो मार्क कर देते हैं ना हम, ये 0.42 होगा, राइट, ये 468, राइट, एक वैल्यू मार्क कर दी है। एक उसने क्या कहा है कि ठीक है एक वैल्यू नीचे आ जाएगी, ठीक है जी, राइट, तो इसको हाईलाइट भी कर देते हैं, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू, राइट। अच्छा जी, और हमें क्या ज़रूरत है, अब हमें ना डिस्प्लेसमेंट्स की, सॉरी एम्पलीट्यूड की ज़रूरत है। तो ये कैसे आएगा आपके पास, यहाँ पे मैंने बताया था कि आपके पास जो एम्पलीट्यूड है वो 2 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे जो 2 सेंटीमीटर कहाँ पे आता है, राइट, ये वाला एक 2 सेंटीमीटर आ रहा है आपके पास, और एक आपके पास आ रहा है -2, राइट। इसको हम कर लेते हैं हो, राइट, ये, राइट, अच्छा जी, ओके। अब इन पॉइंट्स को हमने करना है ज्वाइन, एक मिनट में सर्कल ले सकता हूँ, नो फिल, राइट, राइट,
आई वुड से कि ये हमने ड्रॉ करना है, राइट। इसके हमें मिलेंगे, क्या मिलेगा, 3 मार्क मिलेंगे, राइट। तो आगे पास जो मार्किंग स्कीम है उस पर लिखा हुआ है कि रीजनेबली शेड कंटिन्यूस सर्कल सराउंडिंग 0,0, ठीक है, ठीक है। अगला लिखा हुआ है कर्व पासिस थ्रू 0,0.42, परफेक्ट। 0-4 to 2,0, यस परफेक्ट। इसके हमें 3 मार्क मिल जाएंगे, हमने सही किया काम, राइट। है ना मज़े का क्वेश्चन ये। मुझे ना एक्चुअली ये ग्राफ मुझे बहुत पसंद था इस चैप्टर का। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेट बाय द रेफरेंस ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हाट इज मेंट बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है तो वो क्या होगी, ये हो सकती है 2π/t हो सकती है, राइट। इसको ही मेंशन कर दें, इसके मार्क मिल जाएंगे। अच्छा जी, आगे है, अच्छा आगे क्या ये मुझे याद है, एस में भी क्वेश्चन होता था। द थिन मेटल स्ट्रिप इज क्लैम्प्ड एट वन एंड सो इट इज़ हॉरिजॉन्टल। द लोड ऑफ mass m is attached to its free end. The load causes the displacement of the end of the strip as shown in figure 4 2.1। ये क्लैम्प है आपका, ये लोड मैस m है, ये डिस्टेंस है, ये लाइन जो भी है बकवास है। द लोड इज डिस्प्लेस वर्टिकली देन रिलीज लोड एक्सीलरेट्स। ये आपका अच्छा डिफरेंट ग्राफ है, इस बार ऑपोजिट बनाया, वरना एक्सीलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट बनाते होते, राइट। कोई बात नहीं, लिखा हुआ है डिटरमिन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड बिफोर इट इज़ मेड टू ऑसिलेट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोड बिफोर इट इज़ मेड टू ऑसिलेट, ये 2 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, तो सेंटीमीटर में देना है, ठीक है। 2 सेंटीमीटर आंसर दे दिया। लिखा हुआ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द लोड, देते हैं जी, क्या आएगा, ठीक है, ये कितना डिफरेंस आ रहा है इसके बीच, एक मिनट, ये 1 2 3 4 5, ये यानी 3.5 है, ये आपका 2 है, तो 3.5 माइनस 2.0 से आपका आएगा 1.5, राइट। ये आपका आंसर होगा, राइट, 1.5, राइट। अच्छा जी, आगे लिखा हुआ है कि शो दैट द लोड इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट। वही ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, इसको एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। अच्छा, आगे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द लोड, 3 मार्क है, तो वही एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, राइट। और डिस्प्लेस, ठीक है, उसका निकाल लेंगे तो यानी ये आ जाएगा आपका ग्रेडियंट, राइट। इस पर जो ग्रेडियंट आएगा ना वो 1/this आएगा आई गेस। एक मिनट मैं चेक करता हूँ इसका, यस। अच्छा, ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें पॉइंट्स चाहिए, तो एक को आ गया आपके पास 0,2 आ गया, और दूसरा आपके पास आएगा, कौन सा पॉइंट ले लूँ, 0,3.5 ले लेते हैं, राइट। नहीं पॉइंट आई नहीं ना, सॉरी 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 सॉरी, ये ले लेते हैं, ये परफेक्ट पॉइंट लग रहा है, 0.6/1 आ रहा है, 0.6/1 इंटू 10⁻⁻² आई गेस, 0.6/1, राइट। अच्छा जी, अब इसका एक्चुअली ग्रेडियंट निकालते हैं, 10⁻⁻² माइनस 2 0.6 माइनस 0, राइट। तो ये आ रहा है 10⁻⁻² माइनस 2, राइट, डिवाइड बाई 0.6, तो ये आ रहा है -199/60, राइट। तो अब इसका मैं समझता हूँ कि अगर आपने अब निकालना है ना, इसका ये निकालना है, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्केयर इज
2πf, राइट। और अगर आपने ओमेगा निकालना है, इसका मतलब है कि जो आपने वैल्यू निकाली है 199.60 की, इसका स्केयर करेंगे, ये आ जाएगा 2π और ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मेरा आंसर आ रहा है, रॉन्ग आ रहा है, एक सेकेंड। ओमेगा स्केयर की वैल्यू मेरी, एक सेकेंड। ग्रेडियंट मेरा आ रहा है, एक सेकेंड। कोई मिस्टेक की है मैंने क्या? एक मिनट, लेट मी सी इट अगेन। अच्छा जी, आपके पास आ जाए, एक पॉइंट आ जाए, वही 0,2। अच्छा जी, 2, आई गेस, ठीक है ठीक है ठीक है, 0,2 के साथ भी तो आएगा ना, 10⁻², राइट। दूसरा पॉइंट सही था, 0.6 का 1⁻10⁻², राइट। इसका ग्रेडियंट लेंगे हाफ, तो अब ये आएगा आपका 2 स्केयर के। अच्छा जी, लेट मी कैलकुलेट, डायरेक्ट कर लेता हूँ। 1 इंटू 10⁻², -2 की पावर 10⁻², एक सेकेंड, 1 10⁻², -10 10⁻², 0.6 तो ये आ रहा है मेरे पास -1/60। ठीक है, तो माइनस ख़त्म कर देते हैं हम, बात थी नहीं हमें, तो ये आ जाएगा 60। ओमेगा स्केयर इज 60, राइट। ओमेगा स्केयर इज 60, राइट। तो फ्रीक्वेंसी आएगी 60/2π, राइट। और एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने अब क्या किया है, एक सेकेंड। ओमेगा स्केयर आपका 60 आ रहा है, तो आई गेस ठीक है, तो ये आ जाता है आपका, एक सेकेंड, तो एक सेकेंड, हाँ। अब अगर मैंने ना ये निकालना है, तो ये हो जाएगा √60, और तो ये हो जाएगा, ओमेगा होता है आपका, एक सेकेंड, 2πf होता है, राइट। तो अगर तो आपके पास आ रहा है ना, √60 आ रहा है, इसको 2π से करेंगे फ्रिक्वेंसी, यार छोटी छोटी मिस्टेक्स है ना, 1.23, राइट। अब सही है। वाह, अच्छा जी, ये तो कुछ चैप्टर 1 से है। क्या लिखना है? एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल
circle when arc length is equals to radius of a circle. Let me see marking scheme definition मेरे में क्या difference है. Angle subtended when arc length is equal to radius. Angle subtended is center of a circle. Perfect. By reference, what is meant by angular frequency? This is this. अच्छा जी, ये क्या कहता है कि थिन मेटल स्ट्रिप कोई सेम चीज़ है नहीं. ये क्या है? ऑसिलेशंस ऑफ लोड. The metal strips is this: when a free end strip is displaced vertically and then released, the mass oscillates in a vertical plane. The theory predicts the variation with acceleration. When the displacement from its equilibrium position is given, this is this. When L is the effective length of the metal strip and C is a positive constant, how the expression shows that load is undergoing simple harmonic motion. अच्छा जी, आपके पास क्या होगा? एक्सीलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का, और ये इक्वेशन है माइनस सी एम एल क्यूब एक्स. इट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी अपॉन एम एल क्यूब. सो इसका मतलब है कि वही एक्सीलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू दिस, और नेगेटिव साइन ऑपोजिट शो करते हैं, राइट. ये चीज़ें लिखते ना 2 मार्क का है. For a metal strip of length this much, mass this, the frequency is this, calculate the constant C. ओके, एक सेकेंड. ये आ जाता आपका ओमेगा स्क्वायर सी एम एल क्यूब, राइट. अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ. तो ये अगर आपके पास 2 पाई फ्रिक्वेंसी 3.2 है, तो ये हो जाएगा 3.2 पाई 32 अपॉन 5 पाई, राइट. तो ये हो जाएगा 32 अपॉन 5 पाई का स्क्वायर. सी मैस कितना आपका 240 10 की पावर -3, और लेंथ क्यूब है 65 इंटू 10 की पावर -2 का क्यूब, राइट. ठीक है, ये आ जाएगा 240 10 की पावर -3. $26.64, राइट, किलोग्राम. ओहो, किलोग्राम मीटर क्यूब एस -2. ये आ जाएगा आपके पास 27. मार्किंग स्कीम ने भी कहा है क्योंकि 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट. थोड़ा सा रह गया. क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच ही गए. द यू ट्यूब कॉन्टेनिंग लिक्विड्स, ये एक्स है, ये दिस मच दिस ऊपर, ये इक्वेशन वही रिपीटेड. अच्छा जी, ये जल्दी से करते हैं. ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 2g अपॉन एल. ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.81. एल आपके पास आएगा 19 इंटू 10 की पावर -2, राइट. अच्छा जी, मेरे पास ओमेगा आ रहा है 10.16, और ये होता है 2 पाई अपॉन टी होता है, राइट. तो टी आ जाएगा 2 पाई, एक मिनट बस कंसर्न कर 0.62, परफेक्ट. 0.62. यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा था
0.618, राइट। अच्छा, क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स इज शोन फिगर 3.3 कॉज ऑफ डैम्पिंग। अगर आपके पास रेजिस्टेंस हो सकती है, राइट, और क्वेश्चन किसके बारे में है, ये लिक्विड के बारे में, तो हम क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन बिटवीन द लिक्विड राइट। The period of oscillation of the liquid column of mass is T. Calculate the loss in total energy of the oscillation for the first 2.5 periods of oscillation, right? तो इसका क्या हो सकता है आपके पास, हाफ एम एक्स नॉट का स्केयर, राइट। ओमेगा स्केयर मैं लिखना भूल गया हूँ, एक मिनट, एक्स नॉट का स्केयर, राइट। अच्छा जी, ये 1/2 फर्स्ट 2.5 सेकेंड्स की बात की है उसने। एक सेकेंड, मैस है आपके पास 18 ग्राम, ओमेगा स्केयर इज 10.166 का स्केयर, राइट। यहाँ पे फुल ब्रैकेट्स लगा लेते हैं, राइट, का स्केयर माइनस समथिंग का स्केयर, राइट। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास क्या किया जाए, आपको इतना बता दिए कि 2.5 पीरियड्स हैं, राइट। तो अगर तो आपके पास आ रहा है ना 2.5 पीरियड्स, इसका मतलब है कि ये 1 पीरियड, 2 पीरियड, 2.5 पीरियड आपके पास आई गेस ये यहाँ तक होगा, आई बिलीव सो। तो इसका मतलब है कि ये आ रहेगा, ये आ जाएगा 0.95 आ रहा है, 0.95, और कहाँ से आ रहा है, 2 से आ रहा है, कितना सेंटीमीटर में, ठीक है जी। ये हो जाएगा 2 10⁻², और ये 0.95 इंटू 10⁻², राइट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2.9 10⁻⁻4 जॉल्स, राइट। फिर इजी पीजी। अच्छा जी, आई थिंक ये क्वेश्चन किया नहीं हमने ऊपर इस तरह का, आई डोंट नो। ये कोई ने लिखा हुआ शो द लिक्विड कॉलम्स अंडरस्कोर ट्रिपल हार्मोनिक मोशन, वही माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट। ये बार बार लिखने से ना चीज़ें याद होती हैं, पर्पज़ ये है रिपीटेड क्वेश्चन करने का, वन है आसान नज़र आ रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन यू डिस्क्राइब द लेंथ एल ऑफ द पीरियड कॉलम, राइट। तो अगर हमने लेंथ एल निकालनी है तो क्या किया जाए, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर 2g/L, राइट। और यहाँ कोई वैल्यूज़ शैल्यूज़ कुछ भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा जी, अगर आपने ओमेगा निकालना हो तो ये हो जाएगा 2π/T हो जाएगा, तो ये 2π/टाइम पीरियड कितना आएगा, 0.50, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा 2π/0.50 का स्क्वायर, 2 इंटू 9.81 L, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आएगा 0.12, राइट। लिखा हुआ है व्हाट इज़, तो ये आपके पास डायरेक्ट आ जाएगा विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड या फिर फ्रिक्शन ऑफ लिक्विड, राइट। लिखा हुआ है टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन आफ्टर 1.5 कंप्लीट ऑसिलेशंस, और फिर लिखा हुआ है टोटल एनर्जी टोटल इनिशियल एनर्जी ऑफ ऑसिलेशंस, राइट। तो अब आपके पास मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था जिसमें मैस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट, यही था ना, एक सेकेंड, हाँ ठीक है यही था। अच्छा जी, इसका मैंने बताया था कि ये दोनों चीज़ें ऊपर ऊपर से कैंसिल हो जाएंगी, तो इसका मतलब है कि आपके पास आखिर में बचना यही है, एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स नॉट का स्क्वायर, ये 1 का लें, ये 2 का लें, राइट। अच्छा जी, ये ऐसा कर लें, ये एक मिनट, ये
ये ब्लैक कर लेते हैं, ये पिंक कर लेते हैं, राइट। अच्छा जी, इनिशियल क्या आपके पास क्या है, इनिशियल वैल्यू 2 है, 2 का स्केयर, राइट। और ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी आपकी 1.5 कंप्लीट ऑसिलेशंस हुई हैं। यहाँ पे आपके पास हुई है 1, यहाँ पे 1.5, एक मिनट, ये वैल्यू कितनी आएगी 1 पॉइंट, ये वाली वैल्यू चाहिए 1 2 3, 1.3 आ रही है, राइट। तो ये आ जाएगी 1.3 10⁻⁻² का स्केयर आ जाएगा, राइट। तो ये आंसर आ रहा है 0.42। अब ऐसे से प्रैक्टिस हो रही है, अच्छी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि द मैस इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय मींस ऑफ अ स्प्रिंग एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर 4.1। ठीक है जी, ये आखिर में थोड़ा सा ना मोड़ दिया है। व्हाट इज मेंट बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैस ऑन द स्प्रिंग। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपकी क्या होती है, खाली उसने ये पूछा है डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट इन अ गिवन डायरेक्शन। ये मार्किंग्स की भी डेफिनेशन इसी को ही लिखेंगे हम, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट in a given direction, right? Distance from a point in a given direction is known as displacement of a mass on the spring. अच्छा जी, बट नॉट परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर आपके पास वही सेम टू सेम रीज़न है कि माइनस ओमेगा स्केयर एक्स में बता दें कि एक्सीलरेशन आपका प्रॉपर प्रोपोर्शनल नहीं है, राइट। एक मार्क का तो आई थिंक एक्सेप्टेबल होगा, राइट। मार्किंग्स की कहती लाइन स्ट्रेट नहीं हो तो हमें पता है, ठीक है। द एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन में बी चेंज्ड, स्टेट द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड फॉर विच सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अच्छा जी, एम्पलीट्यूड देना है हमने। अगर हम यहाँ का दे देना यहाँ का, तो प्रॉब्लम ये होगी, यहाँ पे ये वाला मसला बनेगा। तो हमने कोई ऐसा पॉइंट लेना है जहाँ पे हमें पता हो कि ये वाला और ये वाला एरिया सेम हो। इसके लिए क्या कर सकते हैं, आई वुड से ये वाला पॉइंट मुझे अच्छा लग रहा है, या ये कौन सा आ रहा है 5.5 6, ये 7, ये 8.85 आ रहा है मेरा, राइट। क्या आ रहा है 0.85। अच्छा से फॉर अ सिंपल लिखा हुआ है, फॉर अ सिंपल हार्मोनिक यूज टू डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशंस एक्स, राइट। तो एक्स आपके फिर फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो हम क्या करेंगे 2π/f, राइट। यहाँ से ले लेते हैं 0.10 ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट लेनी है हमने 0.85 लिया है, 10⁻⁻², कोमा ये वाली वैल्यू क्या आएगी, लेट मी सी, ये आ रही है 0.5 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3 बॉक्सेस प्लस 1.15, राइट। ठीक है जी, ये हो जाएगा
1.15 minus 0.85 इंटू 10 की पावर -2 माइनस 0, राइट. ग्रेडियंट, अच्छा जी, ये आएगा 0.85 10 की पावर -2. 1, ये आ रहा है 135.29, राइट. एक सेकेंड. ओके. अच्छा, अगर आपके पास जो ग्रेडियंट आया है, ये ग्रेडियंट है आपका ओमेगा स्केयर का, राइट. तो इसका आ जाएगा 135.29 2 पाई एफ, राइट. 1.85 आ रहा है, राइट. राइट, ये आंसर आ रहा है. अच्छा जी, नेक्स्ट पार्ट कहता है कि द मैक्सिमम स्पीड of the mass when oscillating with a simple harmonic motion of amplitude is this. लिखा हुआ है कि the maximum speed of mass when oscillating with simple harmonic motion of amplitude is x naught is v naught. ठीक है. On display showed the variation of the displacement of x with the velocity v for the mass of displacement from positive to this, right. यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स गिवन है, राइट. तो आई वुड जस्ट पिक दिस थिंग. राइट, आई वुड से ये वाला आंसर आएगा, राइट. राइट. ये क्वेश्चन नंबर 23 आ गया भाई, मैं थक गया हूँ बिल्कुल. मैस ये है, ये ऑसिलेटर है, ये आपके पास जिसका चेक कर लेते हैं, ये 1.5 होगा नज़र आ रहा है. व्हाट इज़ मेंट बाय द डैम्पिंग. मार्किंग स्कीम कहती है लॉस ऑफ एनर्जी. लॉस ऑफ एनर्जी लिखा हुआ है कि द एविडेंस प्रोवाइड दैट द मोशन ऑफ द बॉल इज डैम्प्ड. आप लिखेंगे कि द एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग. अभी आसान लग रहे हैं सारे क्वेश्चंस. एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस, राइट. अच्छा जी, आगे है ये चीज़ है, लिखा हुआ है the mass of the ball is this much kg. Use data from figure 4 point to determine the angular frequency of the oscillations of the ball, right. ओमेगा स्केयर 2k अपॉन m, राइट. और मैस गिवन है, और क्या चीज़ गिवन नहीं है. तो ये 2 पाई अपॉन टी हो सकता है. तो ये 2 पाई अपॉन टी. टाइम पीरियड क्या है आपका, एक का 0.8, राइट. सेवन 7.9 आया, राइट. ठीक है, अब तो आसान हो गया. तो ये हो गया 7.9 का स्केयर 2k मैस 1.2. आंसर आ जाएगा 37 न्यूटन मीटर. अच्छा, ख़त्म ही नहीं कर रहे क्वेश्चन.
The oscillator is switched on, the amplitude of the oscillator is constant, the angular frequency of the oscillation is gradually increased point 0.7 to 0.3, where omega is the angular frequency B part. ठीक है, used to show the variation with the angular speed of amplitude A to oscillations of the ball. यहाँ पे यूँ होगा. नहीं, राइट, कुछ समथिंग ये बनेगा. राइट, यूँ कुछ समथिंग बनेगा. राइट, ये पीक, एक ये पीक आनी चाहिए बस. अच्छा, मार्किंग स्कीम कहती है कि वन स्मूथ कर्व, ठीक है, नॉट टचिंग दी एफ एक्सिस with two concave sides meeting at a peak in between them, one peak at one. ठीक है जी. अच्छा जी, नेक्स्ट. लिखा हुआ है कि some sand is now sprinkled with horizontal surface. The angular frequency of which is again gradually increased from 0.7 to 0.3. ठीक है, इसका मतलब है कि आपके पास क्या होगा कि अगली पीक जो होगी ना वो यूँ होगी, यूँ कुछ समथिंग करके कुछ इन्हें बनाना है. ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक तो लोअर पीक होगी क्योंकि रेजिस्टेंस आ जाएगी. ठीक है, और पीक विल बी लेस शार्प. अच्छा, मार्किंग स्कीम कहती है कि लोअर पीक लाइन इज लोअर पीक, फ्लैटर पीक इज लेस शार्प, पीक एट अ स्लाइटली लोअर एंगुलर, पीक मूव्स टू लेफ्ट. अच्छा, पीक मूव्स टू लेफ्ट भी कर सकते हैं. राइट, राइट. अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 9 मार्क है. अच्छा जी, क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मेड बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन. इसमें कोई बहस ही नहीं है, इसको एक्सप्लेन करना है. द वेरिएशन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पी विद द डिस्प्लेसमेंट एक्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज शोन इन फिगर 3.2. ये एम्पलीट्यूड है, ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम वेलोसिटी. ठीक है जी. डिटरमिन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन इन अ स्फीयर पी. राइट. तो अगर आपको निकालना है तो क्या होना चाहिए, 2πf होना चाहिए. और फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, अगर ये वाली चीज़ यहाँ पे नहीं लग सकती तो क्या लगाऊंगा. चलो, मेरे पास कौन कौन सी मुझे कोई आती हैं. एक तो मुझे कोई आती है ये वाली WX0 वाली. राइट, अगर मैं ये लगाता हूँ तो आपके पास आ रहा है 0.25 ओमेगा, और आपके पास एम्पलीट्यूड आ रहा है 8.4 आ रहा है, इंटू 10⁻⁻2 आ रहा है. राइट, यहाँ से अगर मैं ओमेगा निकालूँ अपना 8.4 10⁻⁻2, तो आ जाएगा मेरे पास आ रहा है 2.97. राइट, अब मैं अगर इससे निकालूँ अपना 2πf, तो 2.97 2πf ये आ जाएगा 0.47 आ रहा है. मार्किंग स्कीम कहती है 0.45. हाँ, 0.25 डिवाइडेड बाई 8.8 10⁻8.8 है. नहीं, एक सेकेंड. कहता है कि एक सेकेंड, substitution of any correct point from graph for x is equals to 0. 0.25
एफ इंटू 8.8 10⁻²। अच्छा 8 से ये 9 नहीं लिखा हुआ, बाय बैड, ये 8.4 8.8 ही है, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे 8.8 और बस इसको सेट कर लेंगे, ठीक है। वर्किंग यही रहेगी आपकी, आंसर आ जाता 0.45, ठीक है। छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। अच्छा जी, यहाँ पे क्या आएगा, एल निकालना है ना, तो ये हो जाएगा t² 2π² L/G। एल निकालना है तो ये हो जाएगा t² G 2π²। ओके, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी से निकल आएगा 1/t से, राइट। तो ये आ जाएगा 1.45, राइट। टू, एक मिनट, आंसर आएगा 20/9, राइट। नाइन 9.81, तो ये आ जाएगा 2π², राइट। चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। वन पॉइंट टू 7 आ रहा है, तो ये 1.2 लिखते हैं, 2 सिग्निफिकेंस करना, राइट। अच्छा, अगला का another pendulum consists of a sphere Q suspended by threads where P and Q are identical. The thread attaches the sphere Q is longer than the thread attached to sphere P. अच्छा, उसकी लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है। The sphere Q is displayed and then really the oscillation of sphere Q have the same amplitude as the oscillation of sphere. The velocity V, sketch the variation with the velocity V with the displacement of x for sphere Q. अच्छा, L ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड सेम है उसका, और लेंथ अगर ज़्यादा है इसका मतलब है कि उसकी स्पीड पे फ़र्क आना चाहिए, ये हमने चीज़ निकालनी है। स्पीड पे क्या फ़र्क आएगा? स्पीड पे फ़र्क आएगा अगर यहाँ पे, एक मिनट, अगर यहाँ पे एल लेंथ आपकी ज़्यादा आ जाती है, फॉर एग्जांपल 2 आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 2 आ जाती है, इसका मतलब है कि मुझे पता लगना चाहिए कि टाइम पीरियड पे क्या इफेक्ट आएगा इसका। अगर मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरे पास क्या होता है, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो टी की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर टी की वैल्यू मेरे पास आ जाती है इंक्रीज़ होके, एक सेकेंड, 2.9 एंड 2.2 है, फॉर एग्जांपल 3 आ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाती है 3। अब 3 आ गई, इसका मतलब है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पे क्या आएगा फ़र्क, 0.33, यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, राइट। फ्रीक्वेंसी आपका 0.45 फॉर एग्जांपल नहीं आती, आपकी 0.2 आ जाती है। फ्रीक्वेंसी आपकी कम हो गई है, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, इसका मतलब है कि आपके पास ओमेगा भी कम हो गया। अगर आपके पास ओमेगा कम हो गया तो आपके पास ये भी वैल्यू स्पीड की कम हो जाएगी, राइट। तो ये कुछ बनना चाहिए आपका, राइट। ये सेम रखेंगे साइड से, और ये समथिंग इस तरह का बनेगा। अच्छा, मार्किंग स्कीम थी कि इक्लिप्स अबाउट अ रीजन विद द सेम इंटरसेप्ट्स ऑन एक्स एक्सिस, इक्लिप्स अबाउट द रीजन क्रॉसिंग वाई एक्सिस इनसाइड ओरिजिनल लूप। एक्स एक्सिस तो सेम रखा है, इक्लिप्स अबाउट द रीजन क्रॉसिंग वी एक्सिस इनसाइड ओरिजिनल लूप, राइट, इनसाइड ओरिजिनल लूप है, ठीक है। तो हम इसका एक और भी कर सकते हैं कि ये
ये समथिंग कुछ यूँ आएगा, राइट। इसके मार्क मिलेंगे आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 पे आ ही गए हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि अच्छा जी, लंबी कहानी है। द सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मेटल स्फीयर फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट बाय मींस ऑफ अ थ्रेड एज illustrated फिगर 3.1। ये आपके पास L था, ये आपके पास अभी भी ये आपके पास L ही होगा। स्फीयर का मास इतना है, इतना आपने डिस्टेंस कवर किया है, इसका मतलब है कि आपके पास ये क्या कर दिया भाई, ये निकल आएगी जैसे, राइट। एक्स निकला नहीं है, लेकिन इस एक्स का निकाल ही लेते हैं, यही कर लेते हैं, क्या पता नीचे कहीं कराई हो उसने। अच्छा बाद में देखते हैं। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है कि द स्फीयर ऑफ मास 94 ग्राम इज डिस्प्लेड ऑन वन साइड थ्रू हॉरिजॉन्टल स्फीयर दिस द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द राइज ग्रेजुअली बाय 0.9 सेंटीमीटर द स्फीयर इज रिलीज सो दैट इट ऑसिलेट्स द स्फीयर मे बी अज्यूम्ड to oscillate with a simple harmonic motion. What is meant by the simple harmonic motion? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अच्छा आगे है स्टेट द kinetic energy of the sphere when the sphere returns to the displaced position shown in figure 3.1, right? काइनेटिक एनर्जी उसने कहा है निकाल कर दें। एक सेकेंड, लिखा हुआ है स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर व्हेन द स्फीयर रिटर्न्स टू द डिस्प्लेस्ड पोजीशन शोन इन फिगर 3.1। ओके अच्छा, अगर तो एक चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल ये थ्रेड है, एक सेकेंड, ये थ्रेड है, ये यहाँ पे गई है, राइट, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे गई है, और यहाँ से यहाँ गई है, और फिर अब यहाँ पे से वापस आएगी। इसका मतलब है कि यहाँ पे आके ये रुकी क्यों है, राइट। इसकी एक सेकेंड, यहाँ पे कर लेते हैं यूँ, ये बॉल है, ये बॉल है, राइट। यहाँ पे ये बॉल जो है स्टॉप्स, क्यों? क्योंकि आपकी जो काइनेटिक एनर्जी थी यानी ज़ीरो हो गई है, यानी आपकी जो वेलोसिटी थी ज़ीरो हो गई है, राइट, ये वजह है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्फीयर व्हेन द स्फीयर रिटर्न्स टू इट्स डिस्प्लेस्ड पोजीशन, तो ये कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, राइट। लिखा हुआ है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑसिलेशंस, ये तो हमारे पास वही ऐसा आ जाएगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये, राइट। अगर हमारे पास ये आ रहा है तो आपके पास आएगा हाफ मैस क्या है 94 ग्राम, अच्छा जी, ओमेगा स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ओमेगा स्क्वायर, एक सेकेंड, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर टोटल एनर्जी निकालनी है, है ही नहीं, गिवन ही नहीं है, ये चीज़ लग ही नहीं सकती, पॉइंटलेस हो गया ये फॉर्मूला। अच्छा जी, अगर ये नहीं लग सकता तो क्या लगेगा? अच्छा उसने ये आपको साइड दी हुई है, तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर तो फ्रिक्शन नहीं है, इसने कुछ ऐसी बात की है। अच्छा सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है, लेकिन उसने अगर एक सेकेंड, और द सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइजेस, अच्छा ठीक है, आई फील लाइक ये वो है दूसरा है। अच्छा अगर आपके पास क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होती है, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या आ जाती है, mgh। मैस आपका क्या आएगा 94 ग्राम, -3, ग्रेविटी क्या आएगी 9.81, हाइट कितनी आएगी 0.90, 10⁻², राइट। आंसर आएगा 8.3, 10⁻³ जॉल्स, राइट। मज़े का क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंट। टू योर आंसर टू शो द रेगुलर फ्रिक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन पेंडुलम इज दिस। अब क्या रहे कि 2π/t
निकाल के दें एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपके पास स्टिल टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी नहीं है, क्या किया जाए? अब मेरे पास एनर्जी है, तो इसका फार्मूला था, कितना होता था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, राइट? तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई है 8.3 10⁻⁻3, राइट? ये हाफ हो गया। ये मैस कितना आया था इनका, 94 ग्राम। इसका मतलब है कि ये आ जाएगा 94। अब आ जाता है आपके पास ओमेगा स्क्वायर, तो निकालना है ना। अब आके जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? एक सेकेंड, लेट मी सी एक चीज़। अच्छा जी, ये एक्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। राइट, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 12.7 का स्क्वायर, 0.90 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, राइट? एक्स का जो आंसर आएगा आपके पास आएगा 12.73, राइट? अब आपके पास 12.73 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 12.7 इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर, 8.3 इंटू 10⁻⁻3, राइट? आपके पास ओमेगा आ जाएगा 3.3 रेडियन पर सेकेंड। और ये आप आगे लिख देंगे शोन। ये वाली जो वर्किंग है ना, ये यहीं पे कीजिएगा कहीं। अच्छा जी, आगे है एल निकालना है। तो ये कैसे आएगा, 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई का स्क्वायर। अच्छा जी, ये आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू एल, राइट? तो टाइम पीरियड अब तो निकाला जा सकता है ना। तो 2 पाई/टी इज इक्वल्स टू 3.3। तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई/3.3, राइट? तो ये आ जाएगा 3.3 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 पाई का स्क्वायर, ये आ जाएगा 9.81 इज इक्वल्स टू लेंथ, राइट? आंसर आएगा 0.90 मीटर, ठीक है? मज़े का क्वेश्चन था काफ़ी। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन 26 थोड़ा सा लंबा लग रहा है, तो आई वुड से एक मिनट, कुछ छोटा क्वेश्चन नहीं है, पहले कर लें। ये करते हैं फिर बैकवर्ड्स। पहले ये आई थिंक उसमें भी ग्राफ है यार, ये करते हैं, चेक करते हैं। कंप्लीट तो करना है। क्वेश्चन 27 कहता है कि स्प्रिंग ट्रॉलीज एक्सलेशन, वही ग्राफ, मोशन ट्रॉली सिंपल हार्मोनिक आसान, डिटरमिन द पीरियड टी। आपने यहाँ पे एक्सलेशन इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स कर दें, सिंपल लिखना है। टाइम टी पीरियड क्या होगा, तो आपने ग्रेडियंट निकालना है इसका। कैसे आएगा, 0,0, दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 12 इंटू 10⁻⁻2 कोमा -0.8, राइट? इसका ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, क्या आएगा, -0.8 10⁻2 0। तो ये आ रहा है -20/3। तो ग्रेडियंट आएगा इसका स्क्वायर रूट 20/3, राइट? तो आ जाएगा 20/3, 2.58, राइट? अच्छा जी, अगर ये 2.58 आ गया, इसका मतलब है कि 2.58 इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं,
2.58 आगे पास ओमेगा आ गया, तो ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी पीरियड, राइट। तो ये आ जाता है 2 पाई अपॉन 2.58, राइट। तो 2 पाई अपॉन 2.58, इसका आंसर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 2.43, 2.43 आ रहा है, राइट। अच्छा फिर ग्राफ आ गया भाई, ग्राफ ही ग्राफ। ऑन द लाइन ऑफ द फिगर पॉइंट लेबल द लाइन P on one point where the kinetic energy of the trolley is 0. एक मिनट, where the kinetic energy of the trolley is 0. ओके, आपकी यहाँ पे चेक करना है कि काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो कब होती है, गैस बताएं। यहाँ पे लग काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो कब होगी, जब आपके पास राइट, ये इस तरह था। तो यहाँ पे हमें पता लगता था कि काइनेटिक एनर्जी आपकी ज़ीरो तब होगी जब आपके पास आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ज़ीरो होगी। सॉरी, आपके पास एक्स की वैल्यू हमने निकाला, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होनी चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो कब होती है एक मिनट, यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ है, ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है, राइट। काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो चाहिए हमें, यहाँ पे तो मैक्सिमम है, यहाँ इस पॉइंट पे जाके आपके पास क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी, यानी ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट पी होना चाहिए, राइट। पॉइंट पी क्या था, पॉइंट पी था ना, हाँ पॉइंट पी। अब आगे लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है ऑन द लाइन फिगर वो पॉइंट लेबल द लेटर क्यू ऑन appropriate सेक्शन ऑफ वन पॉइंट वेयर द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग्स। यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कोई सेंटर में कोई पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट लेबल्ड क्यू एट डिस्प्लेसमेंट विद मैग्नीट्यूड, मार्किंग्स की पढ़ो कि पॉइंट लेबल्ड क्यू एट डिस्प्लेसमेंट विद मैग्नीट्यूड मोर देन हाफ बट लेस देन मैक्सिमम, ये कर देते हैं, राइट। पॉइंट क्यू, राइट। अच्छा जी आगे आ जाए जी, यहाँ पे पॉइंट क्यों नहीं है भाई। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड 8, यहाँ पे आ जाएगा 8, तो ये 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड कितना आ रहा है 4, ये आ जाएगा 1.6 रेडियंस, तो ये आ जाएगा हाफ एम ओमेगा स्केयर एक्स नॉट का स्केयर, ये आ जाएगा ई हाफ। मैथ्स कितना आपका भाई, अरे भाई जान, मैथ्स ना 36 ओमेगा 1.6 का स्केयर, यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, यहाँ पे आएगा 8, ये आपके पास एम्पलीट्यूड के बने 8 10⁻⁻² का स्केयर, राइट। और यहाँ पे आंसर आएगा 0.29, राइट। अच्छा जी आगे आगे स्टेट sketch the variation h of the kinetic energy of the object। 0.29 आपके पास आ रही है टोटल एनर्जी, 0.29 0.29 0.29 0.29 आपकी आएगी यहाँ पे, राइट। अभी हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ ड्रॉ किया उसका, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, ये 10 आपके पास
अच्छा जी, ये आपके पास मिड पॉइंट है 10, राइट। और यहाँ से आई फील लाइक यूँ नहीं, यूँ करके बनेगा, राइट। लेट मी कंफर्म कि मैं जो सोच रहा हूँ ना दिमागी तौर पे वो यूँ, एक सेकेंड, मैं यूँ सोच रहा हूँ, एक मिनट, यूँ और यूँ। मार्किंग स्कीम कहती है कि डोम शेप कर्व स्टार्टिंग एंडिंग एट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 0 मैक्सिमम। एक सेकेंड, मैंने कुछ ख़राब तो नहीं किया, एक मिनट। डोम शेड कर्व स्टार्टिंग एंड एंडिंग एट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैक्सिमम is as 0.29 joules. Position of peak shown at h is equals to 10 centimeter. Line intercept h at h is equals to 2 centimeter और एक मिनट, line intercepts h axis at h is equals to 2 centimeter, h is equals to 18, 2 और 18, वेट क्या, ठीक है यार, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट्स 2 और 18 थे, राइट। तो ये आ जाएगा आपका, ये कितने पे आएगा, एक सेकेंड, 5/10, ये आ जाएगा यहाँ पे 17 18 यहाँ पे, और एक पॉइंट यहाँ पे आएगा। इसका मतलब है कि ये यूँ और फिर यहाँ से एक लाइन आएगी यहाँ कुछ समथिंग। मैं इसको कंफर्म भी करता हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा, फिर हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। एक सेकेंड, मुझे कंफर्म कर लेते कि मुझे जो ड्रॉ किया सही किया कि नहीं किया। 970242। अच्छा जी, आगे है आपका अक्टूबर नवंबर का वेरिएंट कौन सा है, परफेक्ट। अब कौन सा क्वेश्चन रह गया था हमारा, ये मुझे थोड़ा सा लंबा लग रहा था। अच्छा जी, इसको करते हैं फ़ौरन से और फिर इस चैप्टर को करते हैं गुड बाय। The trolley on a track is attached. अच्छा जी। The trolley on a track is attached by the spring with a fixed x and y. 4.1. The track contains small holes through the short air is thrown upwards. The result of the trolley is the resting of the cushion of air rather than being in a direct contact with the track. अच्छा जी, ये दो स्प्रिंग्स आपके, ये ट्रॉली है, ये फिक्स ब्लॉक्स y, फिक्स ब्लॉक्स x, लेंथ l, ये वैल्यू नहीं है। अच्छा, the trolley is pulled from one side of the equilibrium position and then released so that it oscillates initially with a simple harmonic motion at a short period of क्या पास है यहाँ पे सेंटर, एक मिनट, आपके पास आ गई पोजीशन, एम्पलीट्यूड आपके पास आ गया 5, राइट। इनिशियल एम्पलीट्यूड आपके पास आ रहा है 5 सेंटीमीटर, परफेक्ट। एंगुलर आ गया 2π/t, तो ये 2π टाइम पीरियड कितना आ रहा है आपके पास 4 या 4, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.6 रेडियन। V0W ये आ गया 1.6, डिस्प्लेसमेंट आपके पास 5 × 10⁻⁻2 थी, राइट। तो यहाँ पे आपके पास एक मिनट, सेंटीमीटर में पूछा उसने, और आपके पास आंसर आ जाएगा 7.9, राइट। अच्छा, आगे है apart from the quantities in a part, describe what may be deducted from figure 4.2 about the motion of the trolley between time t is equals to 0 time t is equals to 24 second. No calculations are required. अच्छा जी, क्योंकि अब ग्राफ पॉजिटिव में स्टार्टिंग में, इसका मतलब क्या है कि
इनिशियल आपका जो पुश था वो राइट साइड पे होगा, पॉजिटिव जो है। और पीरियड क्या था आपका, पीरियड आपका 4 सेकेंड्स का है, ये भी हम लिख सकते हैं। और इनिशियल मोशन चेक करें कि ये आपका अनडैम्प्ड था, ठीक है, ये बातें लिखते हैं। अनडैम्प्ड फॉलोड बाय लाइट डैम्पिंग, राइट। और पीरियड आपका था 4 सेकेंड्स का। इनिशियल आपके पास इनिशियल पुल जो था राइट साइड पे था, राइट साइड पे था, राइट। और क्या लिख सकते हैं कि ठीक है, आई थिंक दैट्स इनफ। अच्छा जी, ये आखिरी पार्ट तो अच्छा जी, यहाँ पे क्या है फिर वेलोसिटी और अच्छा ठीक है। 20 20 कहाँ है, ये 20 आपका आ गया, ये इसमें +5 -5 करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपके पास 20, ये +5, ये -5 हो गया, राइट। तो 20,0, ठीक है। मिनिमम लेंथ शोज एज 15 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, परफेक्ट। और आपके पास जो वेलोसिटी 7.9 है ऊपर की साइड पे, चेक करता हूँ कहाँ आती है। 0.2 यानी ये कितने 7.9 लाना है ना, यानी 80 तकरीबन। ये 6, ये 7 यहाँ पे। अच्छा जी, इसी तरह यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, 7, 8 यहाँ समथिंग पे। अब यहाँ पे आ जाएगा ठीक है जी। ये आपके पास आएगा, राइट। इसको ड्रॉ करेंगे तो 3 मार्क मिलेंगे। यहाँ पे होता है हमारा एंड, मेरी हो गई है बस। अगले से फिर अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। खुदा हाफिज़।